Hello students and very good morning to you all. I hope that you all are fine at your homes and preparing for your classes, for your online classes, and you are completing your works as well of exercises. This is Arvind Rai from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur, and as you all know I am a subject teacher of social studies. Students, this video is for class 3rd students, and in this video we are going to learn some facts regarding our new topics or some new cities of our chapter number 6, that is some more cities of India. Okay, some more cities of India. Okay, this is our chapter number 6 and we had started some topics regarding this chapter. Some topics are left that we are going to discuss in this video. Now, till now we had completed with the topics regarding Bangalore. Okay, after that it was Hyderabad, Ahmedabad, Lucknow and Chandigarh. So these cities we had discussed the different facts regarding these cities. Now in today's video we are going to start from page number 43. ठीक है, हम पेज नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में, और जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक होगा वो गुवाहाटी शहर के बारे में होगा. ठीक है, द टॉपिक विल बी गुवाहाटी. Okay, Guwahati. Now, see on page number 43. Guwahati is the largest city in northeastern India. Okay, in northeastern India, Guwahati is the largest city. It is located in the state of Assam. Okay, as we all know that this city is located in Assam. This city lies on the banks of the Brahmaputra river. Okay, this city lies on the banks of Brahmaputra river. Okay, now see, this is an important, okay, river port. Okay, we had discussed earlier also that what is the meaning of port. ठीक है, पोर्ट क्या होती है, जहाँ पे मालवाहक जहाज होती है, पानी वाली जहाज होती है, वहाँ पे गुड्स और पैसेंजर्स को लोड और अनलोड करती है, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटरवे. तो जिस शहर के किनारे वो बड़ी बड़ी मालवाहक जहाजें जो होती हैं जहाँ पे आकर रुकती हैं और गुड्स और पैसेंजर्स लोड और अनलोड होते हैं, उस जगह को पोर्ट कहा जाता है. ठीक है, पोर्ट दो तरह के होते हैं, एक रिवर पोर्ट और एक सी पोर्ट. रिवर पोर्ट का मतलब जो शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं. ठीक है, जो शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं और वहाँ पे पोर्ट है तो उसको रिवर पोर्ट कहेंगे, और जो शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और वहाँ पे अगर पोर्ट है तो उसको सी पोर्ट कहेंगे. Okay, so this is the difference between river port and sea port. As we all know that Guwahati is situated on the banks of river Brahmaputra. Okay, so it is a river port. Now see,
Assamese, Bodo, Bengali and English are the main languages spoken here. Okay, what are the main languages? Okay, Assamese, Bodo, okay, Assamese, Bodo, Bengali and English are the main languages spoken here. Okay, Assamese, Bodo, Bengali and English are the main languages spoken here. यहाँ पे जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो कौन कौन सी है? Assamese, Bodo, Bengali and English. Now see the next point. Bihu is one of the main festivals celebrated here. ठीक है, यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है, जो सबसे मेन फेस्टिवल है वो बिहू है. ओके, बिहू is the main festival celebrated here. Okay, Bihu is the main festival celebrated here. Now see the next point. Things made of bamboo and cane are popular. ठीक है, गुवाहाटी में बैम्बू और केन से बनी चीजें पॉपुलर है या फेमस है, दोनों चीजें हो सकती हैं. Now see on page number 43 itself, left side to the Guwahati topic, one point is given, right values. Okay, most of our cities have become very crowded. Trees and parks are being destroyed as more and more buildings and roads come up. Help to keep your city green. Plant a sapling every year on your birthday. A green city is a healthy city. ठीक है, इस राइट वैल्यू जो है वो हमें क्या समझाना चाहती है कि दिन पर दिन जो हमारा जो शहर है या गांव है, जो भी नेटिव प्लेस है हमारा, ठीक है, वो दिन पर दिन क्राउडेड होता जा रहा है. मतलब पॉपुलेशन जो है वो दिन पर दिन ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है. सो व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड ग्रो और वी शुड प्लांट वन सैपलिंग पर ईयर on our birthday. Okay, because greenery is very much important for our environment. Okay, a green city or a green place is very much healthier, okay, as compared to the place where no trees are there. ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, जहाँ पर हरियाली नहीं है, उसके मुकाबले जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक है, जहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, वहाँ की लाइफ, ठीक है, वहाँ के लोगों की लाइफ जो है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू जहाँ पे पेड़ पौधे या हरियाली नहीं है. ठीक है, सो हमें हर साल क्या करना चाहिए, अपने बर्थडे पे एक पेड़ की सैपलिंग रखनी चाहिए. ठीक है, उसकी देखभाल करनी चाहिए और जितना हो सके लोगों को प्रोवोक करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी लाइफ के लिए और हमारी कंट्री के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है. ठीक है, नाउ सम पिक्चर्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 43. गुवाहाटी ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, जो गुवाहाटी शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक्स पे लाई करता है. फर्स्ट इमेज इज ऑफ दैट. सेकेंड इमेज इज ऑफ द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी अट्रैक्ट्स मेनी पिलग्रिम्स. ठीक है, यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है वो कामाख्या मंदिर है, जो पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, a group of dancers celebrate the festival of Bihu to mark the beginning of the Assamese New Year. असम में जब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करते हैं तो बिहू फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है. ठीक है, यू कैन सी द ट्रेडिशनल वियर. ओके, द डांसर्स आर परफॉर्मिंग द डांस इन देयर ट्रेडिशनल वियर. नाउ
See on page number 44, we are going to start new city, that is Bhopal. Okay. Now see students, we are going to start next topic, that is regarding Bhopal. Okay. Now Bhopal is the capital of the state of Madhya Pradesh. Bhopal is the capital of the state of Madhya Pradesh. Okay, in central India. Okay, Bhopal is the capital of the state of Madhya Pradesh in central India. ठीक है, जो भारत के बीचों बीच जो हिस्सा पड़ता है वो मध्य प्रदेश है, जिसको हम भारत का दिल भी कहते हैं. ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. नाउ सी, इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी विथ अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. ठीक है, कुछ पुरानी चीजें और कुछ नई चीजों को मिलाकर ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा शहर है. फॉर मोर देन 100 years बिटवीन 1819 एंड 1926. ठीक है, 1819 से लेके 1926 तक भोपाल वॉज रूल्ड बाई 4 वुमेन और बेगम्स. ठीक है, 100 सालों तक लगभग भोपाल के ऊपर जो शासन चला वो 4 महिलाओं के द्वारा चला, या उनको बेगम्स कहते थे. दे प्रोवाइडेड द सिटी विद द पाइप्ड वाटर एंड बिल्ट रोड्स. इन लोगों ने शहर को पाइप के माध्यम से पानी की सप्लाई की. इन्होंने कई सारे रोड्स बनवाए. स्कूल्स एंड रेलवेज, कई सारे स्कूल्स खुलवाए, बनवाए. ठीक है, उनका संचालन किया. एंड रेलवेज. टुडे भोपाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन सेंट्रल इंडिया. इट हैज 2 large lakes and several parks. यहाँ पर कई सारे तालाब हैं. ठीक है, कई सारे झील जिसको हम कह सकते हैं, कई सारे पार्क्स हैं. द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर आर हिंदी एंड भोपाली. हिंदी एंड भोपाली is the main language of Bhopal. Okay, Hindi and Bhopali is the main language of Bhopal. Now Diwali and Eid are the main festivals celebrated here. ठीक है, दिवाली और ईद जो है यहाँ की विशेष त्योहार है. ठीक है ना, मुख्य जो त्योहार हैं वो दिवाली और ईद है. ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, और जो भी मैंने बोर्ड पे लिखवाया है उसको देख के आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जो आपके इन फ्यूचर टेस्ट के लिए या एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेहतर हो सके, जिससे आप तैयारी कर सकें. ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो we'll complete the exercise and summary part of this chapter and we'll start the next chapter. Thank you so much.